Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 27 for the topic human reproduction. Now, after completely studying the male reproductive system and female reproductive system of the human being, it is the time to learn the process called as the gametogenesis. Now, we know that gametogenesis is a process of formation of the haploid gametes from the primordial germ cells ऑफ दैट गोनाड और द सेक्स ऑर्गन. तो हमें मालूम है सेक्स ऑर्गन्स जो है, जो गोनाड्स है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं? दे आर कॉल्ड एज गोनाड्स. पर्टिकुलरली वी कैन से दैट दे आर सच एज टेस्टिस इन केस ऑफ द मेल, और फीमेल में कौन से हैं? दैट इज ओवरी. No doubt both are having it in pair. So these testes are in the male and this ovary in the female. You must be knowing these symbols. This is for male, this is for female. Okay. अब ये टेस्टिस में जो जर्म सेल्स है, दो टाइप के सेल होते हैं, हमको मालूम है, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स. जर्म सेल्स आर रिप्रोडक्टिव, यू नो. सो दी जर्म सेल्स जो होते हैं, दे आर डिप्लॉयड, नो डाउट, having double set of chromosomes or set of chromosomes in pair. They undergo a process to produce the haploid male gamete. Haploid male gamete in case of the that testes, called as what? Called as sperm or spermatozoa. Okay. और ओवरी में क्या होता है? The process is they are going to produce haploid female gamete. Haploid female gamete. और वो फीमेल गैमेट जो है उसका क्या नाम है? That is known as what? That is known as ovum or egg. वो भी haploid है. अब हमें haploid और diploid नंबर मालूम है. यहाँ पे in case of the human being, the diploid number of chromosome is 46. 2n नंबर हमारा क्या है? वी नो 46. तो n नंबर क्या होगा? 23. 23 chromosomes. So a process of formation of haploid male gamete or haploid female gamete from the respective diploid germ cells of the primary sex organs or gonads is known as gametogenesis. उसे क्या बताया जाएगा? Gametogenesis. So what is gametogenesis then? Tell me. A process of formation of haploid male gamete or haploid female gamete from the respective diploid germ cells in the primary sex organs or gonads is known as gametogenesis. तो मैंने आपको बताया कि दो टाइप के हम जो इंडिविजुअल्स है, मेल एंड फीमेल. तो मेल में जो मेल सेक्स ऑर्गन उसका नाम है टेस्टिस. ओके. और टेस्टिस में जो डिप्लॉयड जर्म सेल्स होते हैं, दे अंडरगो द प्रोसेस. वो प्रोसेस हम लर्न करेंगे अभी डिटेल में. 3 फेजेस होते हैं उसके. तो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हैप्लॉइड मेल गैमेट फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज द गैमेटोजेनेसिस. या ओवरी जो फीमेल गोनाड है, उसमें जो डिप्लॉयड जर्म सेल्स है, दे अंडरगो प्रोसेस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड फीमेल गैमेट नोन एज द एग और ओवम. वो भी गैमेटोजेनेसिस है. तो ऑब्वियसली सिंस देयर आर 2 काइंड्स ऑफ द गैमेट्स, वी शैल हैव टू लर्न 2 टाइप्स ऑफ द प्रोसेसेस देयर. वन विल बी नोन एज spermatogenesis and other will be known as, what is that? Tell me. oogenesis. तो इसके 2 टाइप हम लर्न करेंगे. वन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड अदर इज नोन एज oogenesis. तो अभी यहां पे हम शुरू करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. गैमेटोजेनेसिस इन मेल is known as spermatogenesis. Okay. And in female it is known as what? oogenesis. वहां पे उसको oogenesis नाम दिया जाएगा. दोनों के प्रिंसिपल एक ही है. अब लर्न करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस.
a process of formation of haploid male gamete sperms from the diploid primordial germ cells of testes is known as spermatogenesis, and that occurs in the testes. हमें मालूम है टेस्टिस में भी कहाँ पे होती है प्रोसेस, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. It occurs in the seminiferous tubules of testes. और ह्यूमन बींग में बहुत लंबा स्पैन दिया है, राइट फ्रॉम द एज ऑफ मैच्योरिटी और प्यूबर्टी which may start from the age of 14 to 16 years in the boys up to the age of even more than 70, you may say 74, 75 और कहीं कहीं तो 80 years और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू रहती है. कंटिन्यूअसली स्पर्म फॉर्मेशन शुरू होता रहता है कहाँ पे, टेस्टिस के अंदर, और उस प्रोसेस का नाम दिया है स्पर्मेटोजेनेसिस. ओके, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर व्हाट इज दैट प्यूबर्टी एज, फ्रॉम प्यूबर्टी एज से शुरू होता है 14 to 16 years and may last even after 70 years. Even up to 70 years also, depending upon the individual stamina of that male. Okay? अब देखो, आप देखेंगे क्या होता है. ये 40 to 60 years से चालू होता है तो अंडर हार्मोनल कंट्रोल है. इसके लिए हार्मोनल कंट्रोल क्या है, हमें हार्मोनल कोऑर्डिनेशन टॉपिक में मालूम है. गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहां पे होता है, दैट इज फ्रॉम हाइपोथैलेमस. वो हाइपोथैलेमस में होता है, ब्रेन के मास्टर ग्लैंड में वो रिलीज होता है. दैट कम्स इनटू द टेस्ट, दैट एंटेरियर पिट्यूटरी. वो एंटेरियर पिट्यूटरी में आके वो क्या कर देता है, इट स्टिम्युलेट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH. ये दो हार्मोन्स जो है पिट्यूटरी के, उसको स्टिम्युलेट करता है. क्या नाम है दो हार्मोन के, बोलो. FSH का नाम आता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और LH का आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या उसे कहते हैं मेल में ICSH. इसका दूसरा नाम क्या है मेल में, ICSH, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. तो FSH सीधा चला जाता है ब्लड से टेस्टिस में to the seminiferous tubule and it stimulates the process of sperm formation by spermatogenesis, FSH के द्वारा. और LH के द्वारा क्या होता है, LH is going to stimulate that particularly Leydig cells for producing interstitial cells for producing the hormone testosterone or androgen. तो ये ध्यान में रखो चीज, ये हार्मोनल कंट्रोल है इसके ऊपर. तो क्या बताया मैंने आपको, दैट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म्स फ्रॉम द डिप्लॉइड germ cells of the male sex organ testes is known as spermatogenesis. Then spermatogenesis occurs for a very long time period in the man's life. Particularly it starts from the age of puberty, 14 to 16 years, and may last even after 70 years, depending upon the individual stamina of that person. Okay. Second thing, ये जो प्रोसेस होती है ये अंडर हार्मोनल कंट्रोल होती है. हार्मोनल कंट्रोल होता है उसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट. ये जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है, क्या बताया मैंने नाम उसका, GnRH. ये रहता है हाइपोथैलेमस में, ब्रेन का जो पार्ट है. एंड फ्रॉम हाइपोथैलेमस दैट गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इज एंटरिंग इनटू द पिट्यूटरी ग्लैंड, and in pituitary gland it stimulates the secretion of FSH and LH hormone. फिर ये दो हार्मोन ब्लड से जाते हैं टेस्टिस में, and in the testes
FSH can activate the seminiferous tubule for the process of sperm formation, for the process of spermatogenesis. So FSH controls spermatogenesis. Okay. And what does the LH control? LH क्या कंट्रोल करने वाला है? LH का नाम दिया है मैंने ICSH, यानी उसका अल्टरनेटिव नेम मैंने बताया है, मैंने नाम नहीं दिया है, इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो लेडिक सेल में जाते हैं, लेडिक सेल को एक्टिवेट करते हैं। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर प्रोड्यूसिंग दैट एंड्रोजीन और टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन। ओके, तो ये पूरी चीजें इंटरडिपेंडेंट है। हमने 11th में उसको लर्न किया था केमिकल कोऑर्डिनेशन में, तो उसको सही टाइम आ गया यहाँ पे यूज करने में। अब ये प्रोसेस जो होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसको पूरा होने के लिए 74 डेज लगते एक साइकिल को, और दैट कैन ऑकर इन 3 इंपॉर्टेंट फेजेस। ये 3 फेजेस मैंने यहाँ पे दिखाए हैं, दैट वी शैल लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियो, इन आवर next lecture. I hope you are getting it very properly. So please watch this video again and again to grasp all the points. और मेरे नेक्स्ट लेक्चर का भी बिल्कुल आप इंतज़ार कीजिए, and try to be with me. We shall prepare all the part very properly. Thanks a lot.